Everyone. So this is the second part of the chapter Environment and Natural Resources. In the first part, we have discussed the major issues in environment that is in front of the global politics, that the global politics is centered around. And then we discussed about the history of environmental politics, and the I gave a brief introduction to the Earth Summit, the Rio Summit, United Nations Conference on Environment and Development. Now, in this part, I'm going to discuss two issues. First is the issue of the global commons, the management of the global commons, and the second is the principle that was adopted at this United Nations Conference on Environment and Development in 1992, also known as the Rio Conference. So these two, this principle, the principle of CBDR, common but differentiated responsibility, and global commons, you will come to know about these two issues in this part of the chapter. So let's start. First, the global commons. Now, what are global commons? There are few areas on the earth, in the world, that are outside the jurisdiction of any one state. That is outside the sovereign jurisdiction of any one state. So what does this mean? मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि हर स्टेट की एक टेरिटरी होती है. ओके, तो लैंड एरिया जो उस स्टेट का है वो, उसके बाद उसके कोस्ट से, फ्रॉम इट्स कोस्ट अबाउट 12 नॉटिकल माइल्स. ओके, तो 12 नॉटिकल माइल्स होता है करीब 22.2 किलोमीटर्स. sea is under the territorial jurisdiction of a state and the air space above its territory. तो जो उसका लैंड एरिया है उसके ऊपर का जो एयर स्पेस है, और 12 नॉटिकल माइल सी जो है वो उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है, सोवरेन जुरिस्डिक्शन में आता है. इसके बियॉन्ड जो है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे एरिया अर्थ के हैं जो कि किसी भी कंट्री के सोवरेन जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं, तो उन एरिया पे किसका कंट्रोल होगा, उस पे किसका जुरिस्डिक्शन होगा, और उन एरियाज का मैनेजमेंट कैसे होगा. तो all those areas which does not come under the sovereign jurisdiction of any one state, they are called global commons. Okay, so there are four categories of this four global commons identify किए गए हैं. पहला है आपका अर्थ एटमॉस्फेयर, एंटार्क्टिक, ओशनिक फ्लो and outer space. Okay, these are four global commons. ये 2 marks के लिए it has been asked in board examination that what are global commons and give 4 examples of global commons. Okay, तो ये global commons हैं. इनका मैनेजमेंट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो मिलकर करती है. दे कम अंडर द कॉमन गवर्नेंस by international community. Common governance इनका है by international community and they are called global commons. So let's see one by one कि ये है क्या. सबसे पहले अर्थ एटमॉस्फेयर. तो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर की कई लेयर्स हैं. ओके, तो वो जितना अर्थ एटमॉस्फेयर है दैट इज़ अ ग्लोबल कॉमन. ओके, उनका मैनेजमेंट, तो उस अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इसको भी मैनेज करने के लिए बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कंक्लूड हुई हैं. सेकंड, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर इस समय सबसे ज़्यादा बात चल रही है, दैट इज़ अंटार्कटिका. नाउ अंटार्कटिका एज यू ऑल नो इट्स अ कॉन्टिनेंटल एरिया, द साउथ पोल का एरिया ये है. इट इज़ अराउंड 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है ये, and it is covered with ice throughout the year. तो 90% of the terrestrial ice, जो अर्थ का 90% आइस है वो अंटार्कटिका में है, and it is the source of about 70% of the planetary fresh water. तो अंटार्कटिका is outside the sovereign jurisdiction of any state. तो इसके ऊपर 2 व्यू पॉइंट्स हैं. पहले तो कुछ स्टेट्स ने अपना क्लेम इसके ऊपर एक्सटेंड किया है, फॉर दैट दे हैव एक्सटेंडेड देयर क्लेम ऑफ सोवरेनिटी ओवर अंटार्कटिका. इसमें है यूके, अर्जेंटीना, चिली एंड देन न्यूजीलैंड, नॉर्वे, फ्रांस. Okay, all these countries have extended their jurisdictional claim
over Antarctica. But the common consensus right now is that it's a global common and everybody has a responsibility of its management. Now, why Antarctica is so important? It has a great importance scientifically. अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन और प्लानिटरी एवोल्यूशन को समझना चाहते हैं तो उसके लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बायोडाइवर्सिटी के लिए है, कुछ स्पीशीज अंटार्कटिका में पाई जाती हैं जो जिन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट, तो साइंटिफिक वैल्यू बहुत है इसकी। और दूसरा क्लाइमेट बैलेंस के लिए, क्लाइमेटिक इक्विलिब्रियम के लिए अंटार्कटिका इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी ट्रीटीज़ हैं जो कि कंक्लूड हुई हैं अंटार्कटिका पे टू मैनेज इट्स एनवायरनमेंट, यहाँ के इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए। एंड नाउ इट इज़ अग्रीड अपॉन दैट एक्सेस टू अंटार्कटिका इज़ ओपन फॉर ओनली 3 एक्टिविटीज़। नंबर 1 इज़ साइंटिफिक रिसर्च, देन टूरिज्म एंड देन फिशिंग। ओके, तो ये खाली 3 एक्टिविटीज़ के लिए अंटार्कटिका इज़ ओपन। फिर आता है आपका ओशन फ्लोर। अबाउट दिस यू ऑल नो, एंड दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ ग्रेट डिबेट बिकॉज द पोल्यूशन इन द ओशन फ्लोर इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ द मरीन लाइफ एंड द मरीन एटमोस्फेयर. Then we have outer space. Outer space is the area between the atmosphere and the other spatial bodies. So रफली स्पीकिंग जो इंटरनेशनल ट्रीटीज में माना जाता है वो ये है कि अर्थ जो आपका सी लेवल है उससे 100 किलोमीटर्स के बियॉन्ड जो है वो आउटर स्पेस है। ओके, तो जो ट्रीटीज आउटर स्पेस पे हुई हैं उसमें इसी डेफिनेशन को माना गया है आउटर स्पेस की कि 100 किलोमीटर्स फ्रॉम सी लेवल will be considered as outer space. And the management of outer space is also very important because the countries have been using outer space for a lot of you must have heard of कि बहुत सी वो मिसाइल्स सारी कंट्रीज आउटर स्पेस में छोड़ते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का वो वैक्यूम एरिया है, बट वो जो है उसको उसके साथ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हो सकती हैं। तो इन सब को देखते हुए इनका इंटरनेशनल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ इट इज मैनेज, लेट्स सी दैट मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। मेनी treaties have been concluded like the Antarctica Treaty of 1959, the Montreal Protocol of 1987 and the Antarctic Environment Protocol of 1991. Now, whenever there has been talks over the issue of management of these global commons, again the north-south inequality has surfaced and the difference in the approach has also surfaced. And यहाँ पे जो management है, it is very much influenced by technology and industrial development. देखिए यहाँ पे ये क्यों नॉर्थ साउथ डायलॉग की बात हो रही है कि इन जितने भी आउटर स्पेस हैं जितने भी ग्लोबल कॉमन्स हैं उनके मैनेजमेंट के लिए उनको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और वहाँ पे जो कंट्रीज ऑफ साउथ हैं दे आर नॉट वेरी गुड एफिशिएंट इन दैट मैनर, और वो जो कंट्रीज ऑफ नॉर्थ हैं दे आर यूजिंग दीज ग्लोबल कॉमन्स टू फर्दर देयर डेवलपमेंट, to use it for their developmental purposes. So this has been a crucial issue while in all the discussions over the management of the global commons. Okay, so not much is asked from this. You just need to prepare a 2 marker and 4 marker from this portion, global commons, not much. Okay, अब जो next topic है जो कि बहुत important है from this chapter, and every year we get this topic in one form or the other in that type of question in the board exam. So that is common but differentiated responsibility. Now what is common but differentiated responsibility? We call it CBDR in short. So this was a principle regarding the management of the global environment. Okay, तो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू द बैकग्राउंड ऑफ अर्थ समिट कि जब बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज आने लगे और जो ग्लोबल वार्मिंग थी वो बढ़ने लगी, जब ओजोन लेयर में हमको एक होल दिखा,
तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए स्टेट इस चीज़ को लेकर कि कुछ करना चाहिए ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए। और उसका जो अर्थ समिट हुई, थर्ड अर्थ समिट रियो में, उसमें इस इशू को बहुत टेकअप किया गया, डिस्कस किया गया। तो वहाँ पे देयर वाज अ क्लियर डिफरेंस इन द अप्रोच ऑफ the countries of the north and the countries of south. So a clear divide surface between the countries of the north and the countries of south. तो दोनों के अप्रोच में क्या डिफरेंस था? जो countries of north, they were saying that they want to discuss the global issues should be discussed as the environment as it stands now. Okay, तो जैसा अभी environment है उसको देखते हुए हमें उससे डील करना है। We do not have to go into the history of this environmental pollution. उनका ये मानना था कि तो अभी की जो सिचुएशन है उसको आप देखिए और उससे डील करने के लिए सारे नेशंस को किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है उस पे बात करिए। ओके, तो जो अभी की सिचुएशन है ग्लोबल एनवायरनमेंट की, उसमें सारे नेशंस को इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी ये एनवायरनमेंट जो है वो किसी भी तरीके से प्योर हो पाएगा, कंजर्व हो पाएगा। फाइन। जो कंट्रीज ऑफ साउथ थे, कंट्रीज ऑफ नॉर्थ, पहले मेरे ख्याल से आप अभी समझ रहे होंगे इतना तो अब तक कि कंट्रीज ऑफ नॉर्थ हैं डेवलप्ड कंट्रीज और जो कंट्रीज ऑफ साउथ हैं ये हैं डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, तो जो कंट्रीज ऑफ साउथ थे उन्होंने ये कहा कि बिकॉज द डेवलप्ड कंट्रीज हैव कंट्रीब्यूटेड मोर टुवर्ड्स दिस ग्लोबल पॉल्यूशन, therefore they should bear more responsibility in its management. ओके, तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये लोग ज़्यादा पॉल्यूट किए हैं इसलिए इसको क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ज़्यादा है, किनकी? डेवलप्ड कंट्रीज की। ओके, दूसरा उन्होंने ये पॉइंट रखा कि ग्लोबल पॉल्यूशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट। Okay, so since the countries, the developed countries started on the path of development very late, मतलब कि बहुत ही पहले से उन्होंने डेवलपमेंट पे एम्बार्क किया है, इसलिए वो इस समय इतने डेवलप्ड हैं और उन्होंने ही ज़्यादा पोल्यूशन किया है। हमारा डेवलपमेंट इज़ वेरी न्यू। ओके, सो हमारा जो डेवलपमेंट का स्टेज है वो भी अभी उनसे बहुत पीछे है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आवर शेयर इन द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट इज मच लेस देन द शेयर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। So the developed countries should bear more responsibility of environmental management than the developing countries. Okay, I hope ये थोड़ा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि अब यहाँ से इसको पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। It was a principle that was accepted in the Rio Declaration at the Earth Summit of 92 as an approach towards environmental management. तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा? ये एक अप्रोच है। Okay, it represented the compromise between the approaches of the countries of the north and the approaches of the countries of south, that environmental conservation is a common responsibility of all the nations. ठीक है, ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनवायरनमेंट को कंजर्व करना सभी नेशंस की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, but the responsibility is more on the developed countries since they have caused more damage to the environment. Okay, तो सभी की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर in the pollution of the environment. Okay, now since in the book it has given in so much of detail, and when this comes as a 6 marker or as a 4 marker also, students find it difficult to write. समझना तो आसान है, समझ आप गए होंगे, समझ इस पिक्चर से भी गए होंगे, सभी ने किया, मगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, इनकी कम है। तो समझना आसान है इसको, लेकिन इसको लिखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये थोड़ा सा कंटेंट जो है मैंने सॉर्ट आउट करके यहाँ पे दिया है। सो इफ़ यू वांट इट एंड नोट्स यू कैन टेक इट डाउन। तो CBDR principles acknowledge all states have shared obligation to address environmental destruction.
ठीक है, बट डिनाइज इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में सभी कंट्रीज की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, the states acknowledge disparity of economic development between the developed and the developed countries. Industrialization preceded in developed countries much earlier than it did in the developing countries. ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन उन कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज में लेट हुआ है। और CBDR इसी प्रिंसिपल को, इसी रिलेशनशिप को रिकग्नाइज करता है। कौन सी रिलेशनशिप? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो जो कंट्रीज जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा किया है उन्होंने इस क्लाइमेट चेंज की तरफ ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ओके, तो states came to an agreement that developed countries contributed more to environmental degradation and should have greater responsibility than the developing countries. ये प्रिंसिपल को अर्थ समिट में एक्सेप्ट कर लिया गया। So this principle was accepted in the Rio Summit of 1992 that the developed countries contributed more to environmental degradation and should have greater responsibility than the developing countries. ठीक है, तो CBDR in principle could therefore said to be based on polluter pay principle, कि जिसने ज़्यादा पॉल्यूट किया है वो ज़्यादा पे करेगा। जिसका हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज ज़्यादा है तो उसको ही ज़्यादा उसके मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करना है। Okay, so this is the principle of common but differentiated responsibility, and further onwards all the laws related to environmental management, उनका application, उनका interpretation, all will be done according to this principle of CBDR. ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट, एक चीज और है, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। फाइन, व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? इट इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट setting targets for the industrialized countries to cut down their greenhouse gas emissions. Greenhouse gases क्या होती हैं? कुछ gases हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। दे आर कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जो ग्लोबल टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, इट इज़ राइजिंग। ओके, सो क्यों ये राइज हो रहा है? क्योंकि इन गैसेस का एमिशन, ये गैसेस एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, तो इन गैसेस का एमिशन जो है वो रोकना है। फाइन, उसके लिए एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसको कि हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ओके, नाउ इसकी जो द टॉक्स ऑन दिस अग्रीमेंट, इट हैपेंड इन द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट एंड ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन 1992। UNFCCC शॉर्ट में कहते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इन दिस इट वॉज डिस्कस एंड दिस वॉज डिसाइडेड। नाउ इसमें दो कैटेगरी ऑफ नेशंस बनाए गए थे। तो 1992 में जिन कंट्रीज का पर कैपिटा एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, ये गैसेस, इनका पर कैपिटा एमिशन वाज अबव अ सर्टेन लेवल, दे हैड टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस इन देयर कंट्रीज ऑन देयर एमिशन। ठीक है, समझ में आया कि जिन कंट्रीज का ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज़्यादा था, अबव अ सर्टेन लेवल, दे हैड टू इंस्टॉल सर्टेन मैकेनिज्म और उनको अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना था। सिंस एट दैट टाइम चाइना, इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, उनका जो पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिशन कम था, इसलिए दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। इसलिए उनको एग्जेम्प्ट किया गया था उन रिक्वायरमेंट से कि आप कुछ सिस्टम्स अपने कंट्री में लगाकर उनका एमिशन कम करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, व्हाई इंडिया एंड चाइना वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल? बिकॉज देयर पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन was very low than that of the developed countries. Fine, that is why they were exempted. This protocol was agreed in 1997 in Kyoto, which is in Japan, and that is why it is called the Kyoto Protocol.
फाइन. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सेट आउट इन UNFCCC. और वो प्रिंसिपल क्या था? वो प्रिंसिपल वही था, CBDR. द सेम प्रिंसिपल दे फॉलोड. वही कर रहे हैं ना, जब वो ये मान रहे हैं कि जिनका ज़्यादा एमिशन है उनको लगाने की ज़रूरत है कंट्रोल्स, और जिनका कम एमिशन है उनको अभी हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं. फाइन. सो इन प्रिंसिपल दे हैव अग्रीड टू CBDR only. Understood? So this is all for today's video. In the next video, I'll be discussing some more concepts in the chapter. Just keep watching the videos and sending me your queries if any. So have a nice day. Thank you for watching. Bye bye.